Hello, good morning, students. Welcome to Sanskaram video lectures. This is our lecture number 5, class 8, chapter 1, Civics, the Indian Constitutions. My dear student, in this chapter, we will discuss about the constitutions, why we need constitutions, and different features of Indian constitutions. First of all, a questions arise in our mind: what is a constitutions? A written document in which we find such rules is called a constitutions. My dear student, एक ऐसा written document जिसमें कुछ रूल्स को डिफाइन किया गया है, अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड precedent according to which a state or an organization is governed is called constitution. This is the picture of Indian Constitution. See my dear student, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है पिक नहीं देखी होगी, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने ये पिक डाली है. दिस इज़ द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है वो इस तरीके का है, जो बाहर से जो मेन कवर है उसका ऐसे दिखाई देता है. माय डियर स्टूडेंट्स, why does a country need a constitutions? You already know what is the constitutions. A set of rules. After that, a questions arise in our mind: why does a country need a constitutions? क्यों एक कंट्री को ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशंस की? A constitutions help serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. My dear student, एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल्स और प्रिंसिपल का पूरा एक सेट है जिसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को गवर्न किया जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, एनी कंट्री नीड टू कॉन्स्टिट्यूशंस बिकॉज इट टेल अस द फंडामेंटल नेचर of our society. What is the meaning of fundamental? My dear student, a central primary rule or principle. A central or primary rule or principle is called fundamental. That's why the country tell about the nature, fundamental nature of our society. Second, it describes the nature of the country's political system. माय डियर स्टूडेंट, कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है. आफ्टर दैट इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंशियल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. आई डिस्कस वन बाय वन. इट टेल अस द फंडामेंटल, हमारी जो कंट्री है उसका क्या नेचर है, यानी परंपरागत रूप से कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से रूल्स को मान के जो है कंट्री को गवर्न किया जा रहा है. सेकेंड, इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कंट्रीज़, कि किस तरह की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो है उस कंट्री की. इसके बारे में भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस हमें बताता है. फॉर इंस्टेंस, इन द अबव एग्जाम्पल, प्रायर टू द पॉलिटिकल्स अपहेल, नेपाल हैड अ monarchical systems wherein the king and his minister took all decisions. However, in a democratic setup, the constitution plays a crucial role. It lays down the guideline for the selections of representative, distribution of power, and puts down a system of check and balance to ensure that no one misuse power and authority. Many a time, unlimited authority leads to gross unfairness. In the Indian constitutions, the fundamental rights includes rule that protect the interest of citizen against misuse of authority by the government officials or politicians. My dear student, it describe, अभी मैंने बताया पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करता है. दैट मीन्स कि किस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम होगी, ऐसा ना हो कि अथॉरिटी कम्प्लीटली इन पॉलिटिशियंस के पास हो और वो हम अपनी इन अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ करें. दैट्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. ये माइनॉरिटी के जो हित हैं उनको
उनको संभालता है अगेंस्ट द डोमिनेशन, किसके डोमिनेशन से, जो रिच पीपल हमारी सोसाइटी में रहते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ इंटर कम्युनिटी एज वेल एज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, a resident welfare associations prevent boys from the neighboring slum to play in their colonies parks as they regard them as a nuisance. This is an example of discriminations against weaker section of the society. The Indian Constitution strictly prohibits discrimination on such ground as a caste, creed, gender, class, or race. After that, we discuss the Indian Constitution. What is the Indian Constitution? My dear student, the Constituent Assembly. सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, किस तरह उसको फ्रेम किया गया है। इसके लिए सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। इन 1943 द कांग्रेस पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियन। सबसे पहले जो कांग्रेस थी जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के समक्ष अपनी ये डिमांड जो है रखी 1943 में कि सिर्फ इंडियंस से मिलकर एक असेंबली का फॉर्मेशन हो, जो सभी मिलकर जो आने वाले इंडिया, एक फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको फ्रेम करे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of Constituent Assembly. There were 300 members in this assembly. The vision of this assembly that free India should be democracy. इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो फ्री इंडिया होगी, जो आज़ाद भारत होगा, पूरी तरह लोकतांत्रिक होगा। My dear student, this is the picture of Rajendra Prasad. See the picture of Dr. Rajendra Prasad. After that, he is the president of Constituent Assembly. After that, Dr. B.R. Ambedkar. It is also a famous personality. My dear student, Dr. B.R. Ambedkar is known as the father of Indian constitutions. He was the chairman of drafting committee. Actually में my dear student, अगर हम बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जो ड्राफ्ट कमेटी थे उसके चेयरमैन भी यही थे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और साथ में अक्यूटो ऑल्सो हेयर। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। दैट मीन्स इन लाइन से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू का अच्छे से मालूम हो रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग पूरी ही कंट्री को गवर्न किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर इंडिया। आफ्टर दैट इट टुक 2 years। द टोटल टाइम्स जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम होने में या बनकर तैयार होने में टोटल कितना टाइम लगा। It took 2 years, 11 months and 17 days to draft the constitution. पूरी तरह इसका ड्राफ्ट तैयार करने में हमें 2 साल 11 महीने और 17 दिनों का समय लगा। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद इट वॉज अप्रूव्ड ऑन 26 नवंबर 1949 में ये पास हुआ। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। इससे पहले मैं आपको प्रीएम्बल के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगी। प्रीएम्बल एक्चुअली में क्या है? इट इज़ अ स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसका एक छोटा सा निचोड़, एक आईना, इसको आप कह सकते एक मिरर, कि क्या कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। द कॉन्स्टिट्यूशंस केम इनटू इफ़ेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, इसको जो इफ़ेक्ट में ये हुआ 26 जैन 1950 को। 26 जैन को हम रिपब्लिक डे, दैट मीन्स गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं बिकॉज
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जैन 1950. The constitutions begin with the preamble that state the ideal which act as a guideline for the policy maker. My dear student, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो है प्रियम्बल से होती है, जिसमें इसके उद्देश्यों को, जो हमारे संविधान के मेन उद्देश्य हैं, इस प्रियम्बल में लिखे गए हैं. See the preamble of Indian constitutions. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. My dear student, अगर देखा जाए तो जो आपकी प्रियम्बल है वो एक तरह से एक आइडियल है, जो एक मार्ग प्रशस्त करती है कि किस तरह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस को परिपूर्ण किया गया है. फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर एज फॉलो. फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सभी को बता दूं, जो फर्स्ट फीचर है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. In a parliamentary structure, the peoples who are chosen by the citizens through universal adult suffrage run the country. These peoples are the elected representative of citizens on behalf of whom they make law. जिनके बिहाफ पर वो लॉ का फॉर्मेशन करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. This means that all citizens of 18 years of the age or above have the right to vote. The farmers felt that all citizens, regardless of their social background, can directly participate in functioning of the government in this manner. The second feature of Indian Constitution is separation of power. The Constitutions clearly defines power between three organs of the state. एक्चुअली में हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके तीन जो है स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, अंग हैं. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर में वो लोग सम्मिलित होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हम चूज़ करके जो है पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वो किसको फ्रेम करते हैं, हमारे लॉज को फ्रेम करते हैं. एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो वो इन कानूनों को एप्लीकेबल करते हैं, सोसाइटी में इनको जो है लागू करते हैं और इनको सुचारू रूप से चलवाते हैं. दिस इज़ द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव. इसमें आपके जितने भी पुलिस अधिकारी, IAS, IPS या जितने भी फोर्स हैं आपकी इंक्लूड है. फिर उसके बाद थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी. जो भी इन कानूनों को तोड़ता है उसके लिए न्याय ये थर्ड ऑर्गन करता है. The legislature is a group of elected representative that frames law on behalf of people. The executive is responsible for implementations of those rules and regulations and is answerable to the legislature. Lastly, the judiciary protects the interest of people and prevents the breach of rules proclaimed in constitutions by any of the organs. The another feature of Indian Constitution is fundamental right. The Indian Constitutions guarantee its citizens certain rights which are essential for well-being. My dear student, now I show the picture of fundamental rights. We have 6 fundamental rights which are provided by our constitutions to each and every citizens. Know your fundamental rights. First, right to equality. हम सभी समान हैं. राइट टू फ्रीडम, हम सभी को आज़ादी है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी शोषण के विरुद्ध हम आवाज़ उठा सकते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को फॉलो करने का हमें अधिकार है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हमें हमारे जो अबाव मेंशन पांचों अधिकार
अधिकारों का कोई अगर हनन करता है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन किया गया है. आफ्टर द फंडामेंटल राइट्स we have some fundamental duties also. Since people benefits from the right, it is their responsibility to do something for the state. Fundamental duties, though not enforceable by law, were included in Indian constitutions in 1976. It is the fundamental duty of every citizens to promote peace and harmony, safeguard public property, रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम्स. ये सभी हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. हमारे पास अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ड्यूटीज़ भी दी हैं जो हमारे ऊपर कोई फोर्सेबल नहीं है. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि जबरन लागू हैं, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है. वैसे ड्यूटी है तो ड्यूटी हमें करनी चाहिए. अगर हमें राइट्स मिले हैं तो ड्यूटीज़ को भी अच्छे से करना है. Another feature of Indian Constitution's directive principle of state policy. These are the guidelines that help the government in transforming the ideal highlighted in the constitutions into law. That promotes socio-economic justice, strength the democratic system, safeguard our heritage, and help in maintaining peaceful relations with our neighboring countries. Here the significance of DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसकी कुछ जो है सिग्निफिकेंस, कुछ विशेषताएं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. DPSP आर backed by public opinions, provide for a welfare state, importance as a moral ideal, and directives constitute a guide for the state. Source of continuity in policies are supplementary to fundamental rights, yardstick for measuring the worth of the government, helpful in interpretation of the constitutions, ambiguity of directive principle is useful. There are some significance of directive प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. एक्चुअली में ये वो गाइडलाइन है जिनके अकॉर्डिंग जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वर्क करती है. एक्चुअली ये एक आइडियल के रूप में है जिनको मानते हुए इंडियन जो गवर्नमेंट है जो है इसके अकॉर्डिंग लोगों के लिए वेलफेयर वर्क कंटिन्यू करती रहती है. द अनदर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म. A secular state is one that does not support any particular religions and treat all religion alike. My dear student, अगर यहाँ पर सेकुलर स्टेट की बात करें तो सेकुलर स्टेट वो स्टेट है जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है. A secular state is one that and treats all religion alike. The word secularism was included by an amendment. यहाँ पर मैं आपको amendment बता दूँ. Amendment परिवर्तन होता है. A change in the existing provisions through an act. किसी एक्ट के थ्रू जब हम संविधान में चेंज लाते हैं, it is called amendment to the constitution in 1976. As per the Indian constitutions, people are free to practice and propagate any religions of their choice. We will read more about the concept in the sequence in our next chapter. Thus the history of country often has a profound influence on its constitution. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें सेकुलरिज्म की, दैट मीन्स स्टेट किसी भी धर्म में कोई भी इंटरप्शन नहीं रखेगी. वी ऑल आर फ्री, हम अपने आप में फ्री हैं चाहे हम किसी भी धर्म को माने. यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दी है जिसमें सभी रिलीजन्स के सिंबल्स और प्लस में उनके नेम मैंने यहाँ पर डाले हैं. हम सभी एक समान हैं और इंडियन स्टेट के लिए सभी धर्म इकट्ठे हैं, चाहे वो हिंदुज़म है, जैनिज़म है, बुद्धिज़्म है, सिख है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है. वो सभी को जो है इक्वल नज़र से देखता है और ना किसी स्पेसिफिक जो रिलीजन है उसको प्रमोट करता है. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर होल चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट. मे बी यू अंडरस्टैंड. देयर आर सो मैनी features of Indian constitutions. I give a review. First is
ओके, हेयर आई ऑल्सो मैंशन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म और है, इसको मैंशन कर लीजिए। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी विच हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें फेडरलिज्म की तो बेटा इंडिया ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फीचर है। और फेडरलिज्म का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि शक्ति का जो है शक्ति को एक जगह सेंट्रलाइज किया गया है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंटर गवर्नमेंट भी है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है पावर्स दी गई हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट, बोथ द सेंटर एंड स्टेट, ड्रू पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस। There are three lists: union and state and concurrent list, deal with the power and function of each level. In a federal setup, individual states enjoy independence in matter related to their state. On a matter of national importance, they have follow order of the central government. My dear student, this is also the key feature of Indian constitutions, federalisms. First feature of Indian constitutions, federalism. Second is parliamentary form of government. Third, separation of power. Fourth, fundamental rights. Also mentions in this portions fundamental duties. After that, directive principles of state policy, and most important, secularism, also the main feature of Indian constitutions. Thank you, student. God bless.